Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn that how to create table by using wizard and some SQL command. But before that, we'll start with the learning of creating a table by using only design view. But before creating a table, this is very much important that you need to learn about data types. जब हम table create करेंगे, then we need the field type. एंड दिस डेटा टाइप यू नीड टू फिल देयर. तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि डेटा टाइप्स क्या हैं और किसे कहाँ फिल करना है अकॉर्डिंगली, तो हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल. ओके, लेट्स स्टार्ट. हियर यू कैन सी चिल्ड्रन द डेटा टाइप इज व्हाट. हियर यू कैन सी द डेटा टाइप इज data type are used to identify which type of data or value we are going to store in the data type. And field, field, here you can see a small table. Here the fields are name and the class, phone number and date of birth. These are the field of the table. Okay, now fields themselves can be a different type depending upon the data that they contain. As you can see here, name is containing all the alphabets and phone number is containing all the numbers, and for storing the date, the different patterns are available. On the basis of these things, data can be categorized in some major categories. They are, you can see here, data ye jo major categories and that is numeric type, then next is alphanumeric type, binary and date and time, and some others too. Okay, now you can see children, there are some categories of numeric data type. अब पहले ये देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप है क्या और कहाँ यूज होता है. Okay, here you can see numeric data type is used for describing only numeric value for the field. जब आपको ऐसी फील्ड है जहाँ जैसे आपका मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है या रोल नंबर है या ऑर्डर नंबर है या कोई मार्क्स है, जब आपको ऐसा लगे कि आपका जो फील्ड है उसके अंदर जो डेटा या वैल्यू स्टोर होगा, दैट इज चिल्ड्रन ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू, then you can use this numeric category. Then you use numeric category, but depending upon the size you can choose the different subcategories for this particular data type. And here you can see boolean, tiny integer, small integer, integer. Here big int means big integer, numeric, decimal, real, float and double. अब सबसे पहले देखते हैं इसकी डिटेलिंग फॉर yes or no. When you feel कि your answer or your value should be within 0 or 1, it means आपका कोई भी फील्ड जहाँ इस तरह का डेटा रिक्वायर्ड है जिसमें उसका आंसर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स, यस और नो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा आएगा, then you simply write the data type yes and no there. Okay, and then after you can see tiny integer, small integer, integer and big integer. These are all the category of integer data type. Depending upon the size only they are bifurcated. इनमें इनका size देख रहे हो, their size are different from each other, जो इनको different type बनाता है. After that number, decimal, real, float and double. Again for the decimal data type ये integer value के लिए है. अब यहाँ for the decimal value, decimal, real, float and double, these are the again the data type with the description of this. Whenever you require like this, you can utilize that. Okay, now let's come back. अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं another category of alphanumeric, that is long, varchar, char, varchar and varchar ignore case. These are children the subcategories of alphanumeric type. Alphanumeric means where you can enter the number as well as a character, but you start with character. अब यहाँ पर आपके पास जिस तरह का जो कॉमन होते हैं, जैसे आपका नेम, फादर्स नेम, क्लास, समटाइम प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की नेम, डिस्क्रिप्शन, these things you will fill with the text or memo. अब यहाँ पर टेक्स्ट और मेमो दिया हुआ है, दिए ज़्यादा डेटा टाइप, लेकिन उसमें भी उनकी साइज और कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बाइफिकेशन है. यू कैन सी जब आपको लगे कि आपका डिस्क्रिप्शन उस चीज़ के लिए बहुत लॉन्ग होने वाला है, देन यू सिंपली गो फॉर मेमो. जब आपको लगे कि आपका डिस्क्रिप्शन काफ़ी लॉन्ग है, जैसे किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, तो यू गो फॉर मेमो. एंड
आफ्टर दैट अगर आपका सिर्फ नेम है, प्रोडक्ट नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, समथिंग कुछ ऐसा है, तो यू कैन गो विथ केयर और वेयर केयर. यूजुअली नॉर्मली एवरी टाइम वी आर गिविंग, you can see in the book, you will find everywhere where care is given. Where care means variable character, and here before that care means character. Here this is your use for the fixed number of values. जो भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर उसके लिए फिक्स हो जाएगा. सपोज यू आर फिक्सिंग द 6 कैरेक्टर, तो इट विल टेक द 6 कैरेक्टर स्पेस, और अगर आपने उसे 5 भी दिया तो इट विल 1 इज गोइंग लाइक वेस्ट, तो उसमें आपका 6 कैरेक्टर ऑक्यूपाई होगा ही, वो यूज हो या ना हो, बट इट्स दैट. तो फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर. And now next is varchar. Varchar is a variable character that can store up to the specified length. जितना चाहते हैं उतना यूज करते हैं. And next is ignore case, that stores up to the specified length, and that is not the case sensitive but store the capitals as you type them. तो these are some detail about the alphanumeric, जिसमें ज़्यादातर हम यूज करेंगे varchar. Okay. Again we are going to the next category, that is children, binary type. Binary data type is what? See children, binary data type is what? Binary data type, you can see here, this data type in a database is used for storing photos, music files or etc. Apart from numbers and character, कभी हमको उसके फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, पिक्चर, कुछ ऐसा या कोई म्यूजिक पीस, ऑडियो पीस, इन सब चीज़ों की एंट्री की भी ज़रूरत पड़ती है. फॉर दैट वी हैव दिस डेटा कैटेगरी, दैट इज बाइनरी टाइप. एंड अगेन बाइनरी टाइप इज ऑल्सो हैविंग सब कैटेगरी, दैट इज लॉन्ग बाइनरी, बाइनरी एंड वर्ड बाइनरी, वेरिएबल बाइनरी. अगेन जैसे कैरेक्टर में कुछ टाइप थे, यहाँ भी हमारे पास कुछ टाइप है. एंड फॉर दिस कैटेगरी डेटा टाइप इज इमेज, देन बाइनरी फिक्स एंड बाइनरी, जिसका डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे. अनदर मेजर डेटा टाइप इज डेट एंड टाइम. ओके, अब ये डेट एंड टाइम क्या करता है? डेट, किसी भी तरह के डेट को स्पेसिफिक लिखने के लिए हमारा कुछ अलग ही पैटर्न होता है. सम आर राइटिंग DDMMYY, सम आर राइटिंग MMDDYY. In some software it is written like that. Some are writing like 1st January 2022. Okay, so in the way date and time are having the specified format. Date and time data type is used for describing the date and time value for the field in a table of the database. Date and time can be storing information such as कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका डेट ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ परचेजिंग है, या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरिंग डेट है, किस भी तरह की वैसी डेट हो या उसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी हो, that you can mention by this data type. Again it has having subcategory, like अगर आपको कभी ऐसा लगे आपको सिर्फ डेट देना है, choose date, time, and it is used to store date and time. Okay, in the way we can utilize this date and time. अब चलिए इससे आगे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि how to start. After that this is the perfect time to start. What? To start that how to create a table and where we are going to utilize all the data types. Let's come to the OpenOffice. This is the platform of OpenOffice, you can see, and here we are going to click on database. As soon as you click on database, just wait for a moment, it is going to open, and here you will fill all the requirement. And yes, this is the platform where we are starting the database. अब it is saying that create a new database, you say of course you need to create, and again it is saying that yes, register the database for me. Yes, you need to register the database for you. Now just wait for a few moments, then the screen will come and this is asking for your name for the database. And here जैसे आपने फिनिश किया तो एक सेव का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर आपने डेटाबेस का नाम दोगे. सपोज आई एम गिविंग क्लास 10, आई एम गिविंग द नेम क्लास 10. जो भी लोकेशन आपको देनी है वो लोकेशन दे दीजिए, एंड देन आफ्टर यू सिंपली क्लिक ऑन सेव. एज सुन एज यू क्लिक सेव, जैसे आप सेव क्लिक करोगे अब वो डेटाबेस का वो प्लेटफॉर्म आएगा जहाँ से आप काम कर रहे थे, जहाँ से आपने काम करना शुरू किया है. जस्ट
अब दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस, द फर्स्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन क्रिएट योर टेबल फॉर यू, बिकॉज पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना होता है और डेटाबेस के अंदर आपको टेबल क्रिएट करनी होती है. दिस इज द इंटरफेस ऑफ डेटाबेस एंड हियर यू कैन सी ये हमारे पास सारे कंपोनेंट है जो हमने पढ़े थे ऑलरेडी डेटाबेस के कंपोनेंट, द टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, दीज आर. एंड हियर you can see create table in design view and using wizard to create table. I'll show you both the way. First I'm starting with the create table in design view. Simply click on double click and here now this is the time to start with the field name. Field name हम यहाँ पर दे सकते हैं name. Suppose हमने name दिया, then उसके बाद हमने दिया phone number. Okay, फ़ोन नंबर हमने दिया एंड देन आफ्टर आई एम गिविंग डेट ऑफ बर्थ, आई एम गिविंग डेट ऑफ बर्थ. सपोज आई एम जस्ट राइटिंग दैट पास्ड और प्रमोटेड, और आई कैन राइट फी पेड और नॉट. ओके, रजिस्ट्रेशन फी पेड और नॉट और समथिंग लाइक. तो कुछ ये बहुत छोटा सा एक हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि हम कुछ अलग अलग तरह के डेटा टाइप को फिल करके देखते हैं. अब हियर यू कैन सी बाय डिफॉल्ट तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, टेक्स्ट 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 varchar, बट एवरीवेयर वी डजंट रिक्वायर टेक्स्ट varchar. ओके, फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन बटन आता है, क्लिक हियर एंड हियर यू कैन सी द कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स दैट यू रेड जस्ट बिफोर, इट इज अपीयर. अब मैंने इसलिए आपको पहले डेटा टाइप सारा क्लियर कर दिया सो दैट यू कैन चूज, अदरवाइज यू फील कि ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं और आपको इनमें से क्या चूज़ करना है, कब और क्यों. नाउ यू हैव एन आइडिया कि वाई दीज थिंग्स आर कमिंग, व्हाट आर दीज थिंग एंड व्हाट टू चूज. नाउ नेम इज सिंपली varchar वेरिएबल कैरेक्टर, दैट इज ओके. नेम में अल्फा न्यूमेरिक कंटेंट स्टोर होगा जिसमें varchar हमारा पर्टिकुलर डेटा टाइप है, आई एम ओके विद दैट. ओके, बट फोन नंबर में varchar आ तो रहा है बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद varchar बिकॉज आई एंड वी ऑल नो कि फ़ोन नंबर ओनली एंड ओनली यूज नंबर्स, तो वहाँ पर सिर्फ नंबर्स ही आपको चाहिए और कुछ नहीं. फॉर दैट सिंपली अब यहाँ से आपके पास डेटाबेस है, आपको डेटा टाइप डिक्लेयर है, आपको डेटा टाइप में आपको पता है कि फ़ोन नंबर में जो भी होगा वो नंबर ही होगा कोई ना कोई, वहाँ पर आपके पास कोई भी डेसिमल कैरेक्टर या कुछ और होना नहीं है. तो सिंपली इफ़ यू आर राइटिंग न्यूमेरिक नंबर दैट इज ऑल्सो करेक्ट. देन टेक्स्ट, अब यहाँ टेक्स्ट नहीं, डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ पर सिर्फ क्या varchar लिखना इज़ नॉट ऑल ओके, तो आई एम गोइंग टू चूज़ फॉर अनदर वन. हमने कहा था कि डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास दूसरा पैटर्न होगा जिसमें हम स्पेसिफाई कर पाएंगे कि डेट क्या होगी. सो आई एम चूजिंग डेट हियर एंड फी पेड. सपोज इसका आंसर सिर्फ येस और नो में होना है, तो व्हाट आई एम डूइंग कि आप इसमें से सिंपली क्लिक कर दीजिए वो कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर सिर्फ आंसर येस और नो में आ रहा हो. एंड फ्रॉम वेयर वी कैन चूज़ येस और नो, तो हमारे पास होना चाहिए था बूलियन. चलो लेट्स फाइंड कि क्या कोई ऑप्शन है जहाँ पर येस और नो फिल हो रहा है. येस, आई कैन सी हियर दैट इज अ बूलियन डेटा टाइप जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था. एंड नाउ आई क्लिक हियर. दिस इज अ वे टू क्रिएट अ डेटा टाइप. सी चिल्ड्रन, डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैंडेटरी. पहले हमें ये फिल करना है कि हमारा फील्ड नेम कौन कौन सा है और इस फील्ड नेम के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल डेटा टाइप है. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट वन. यहाँ तक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़नी है. नाउ यू कैन सी, अब आपके मन में एक क्वेरी आ रही होगी कि हमारा जो विंडो है वो दो पार्ट में स्प्लिट है. One is the 3 columns with the field name, type and description, and another part is having the field property. Let me explain you in short that what is field property. वैसे field property is again the one major topic that I'll tell you in next video also, but अभी थोड़ा बता दूँ, otherwise you will be thinking कि इसमें हो क्या रहा है, half को हमने वैसे ही छोड़ दिया है. Whenever we are choosing for any sort of data type ना, then some properties have to fill, like entry required, यानी कि आप जो भी आप फिल करेंगे. अभी तो देखिए हमारा टेबल बना नहीं है, टेबल हमारी डिज़ाइन ही हो रही है. अब जो टेबल डिज़ाइन हो रही है, क्या इस फील्ड में आगे चलकर क्या एंट्री रिक्वायर्ड होगी, या हम इसे स्किप करके आगे चल सकते हैं. एंड नाउ व्हाट यू फील, यू आर द डेटाबेस क्रिएटर. अगर आपको लगता है कि एंट्री रिक्वायर्ड है, यू सिंपली मेक इट यस.
अदरवाइज अगर तुम्हें लगता है कि नहीं डाउटफुल है कोई केस, वहाँ पर एंट्री अभी रिक्वायर्ड ना करें तो उसको छोड़ के हम आगे बढ़ पाएँ, तो फिल इट नो. दिस इज द रीजन. नाउ हियर लेंथ. अब इसकी ऑलरेडी जो साइज है सॉफ्टवेयर में, अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वक्त ये इसका जो लेंथ है वो आपको 50 दे रहा है. अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज. अगर आपको लगता है कि 20 इज सफिशिएंट फॉर योर नेम, देन मेक इट 20. कुछ डिफ़ॉल्ट है. हियर डिफ़ॉल्ट मीन्स कभी कभी कुछ ऐसे टेक्स्ट या कैरेक्टर या वैल्यूज़ होती हैं. सपोज आपका हमने एक फील्ड दिया नेशनलिटी, तो अगर हम सब जानते हैं कि अगर इंडिया की ही है तो हमारी नेशनलिटी इंडियन ही है, तो फिर सब में हम इंडियन ही क्यों ना फिल कर दें, जो बाद में जाके हमें 1 by 1 फिल करना पड़े. तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी लाइक स्कूल कोड. इफ़ यू ऑल आर फ्रॉम द सेम स्कूल, तो इट्स बेटर टू राइट अ स्कूल कोड एज अ डिफ़ॉल्ट, कि जो भी हम डालें वो हमारा आ जाएगा. For these type of specification for particular field you need to fill the field property. अब एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया है, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट फील्ड्स हैं. हमने जो फील्ड है और फील्ड टाइप नंबर क्लिक किया है तो हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं. डेट एंड टाइम को क्लिक किया है तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कुछ और हैं. आई मीन टू से ओनली कि जैसे ही हम इन सब चीज़ों को डिफरेंट करते हैं, यानी कि आपको जो प्रॉपर्टीज सेट करनी होंगी, प्रॉपर्टीज़ आपको हर फील्ड के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी सेट करनी होंगी. इट्स नॉट लाइक कि आपने पूरे डेटाबेस के लिए या पूरी फील्ड या सारे टेबल के लिए एक बार ही प्रॉपर्टी सेट कर ली. प्रॉपर्टीज आर फॉर द डिफरेंट डेटा टाइप दैट इज़ यूज फॉर द पर्टिकुलर फील्ड. ओके, एंड प्रॉपर्टीज़ मैं आगे अलग से डिस्कस करूँगी आगे. एंड देन आफ्टर जस्ट आई एम क्लोजिंग दिस टेबल. It should not be go too long. Okay, now here you can see save. Now simply save the table. अब यहाँ table 1 by default आ रहा है. आपको 10th ABC जो भी देना है you can give 10th ABC के नाम का table. Okay, suppose I'm giving 10th A and simply make it, and I'm making it okay. It is asking for the primary key. अभी अब तक हम लोगों ने कोई प्राइमरी की नहीं सेट की, तो क्या प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं, येस और नो, ये सब. सपोज I'll just give you the detail. प्राइमरी की आपने पढ़ाई, प्राइमरी की अभी तक हमने यहाँ से कोई सेट नहीं किया था, तो उसने हमें डिफ़ॉल्ट सेट करके दिया है. फाइन. तो इसने देखिए यहाँ पर एक प्राइमरी की, हमने सॉफ्टवेयर ने हमसे पूछा कि अभी तक आपने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है क्या, हम और एक ऑटोमेटिक बना दें, क्रिएट कर दें. हमने उसमें यस कर दिया. अगर हम चाहते वहाँ से नो करके फिर से वापस जाके यहाँ से अपनी चॉइस का कोई प्राइमरी की बना सकते थे. ओके, तो अब हमारी ये टेबल हो गई है क्रिएट. नाउ अगेन जस्ट वी आर क्लोजिंग दिस. ओके, एंड अब हम यहाँ आ गए और हमने देखा सी. हियर आई कैन सी द 10th A जो हमने टेबल क्रिएट की थी, वो टेबल हमारी यहाँ आ गई है 10th A नाम में. अब मैं इस टेबल को ओपन करके दिखाऊं ज़रा. सी, दिस इज द टेबल एग्जैक्टली व्हाट यू क्रिएटेड. अब यहाँ पर कुछ आईडी है, नेम है, फ़ोन नंबर है. अब अकॉर्डिंगली यू विल फिल दैट. अब आप देख रहे हो कि एक ही रो आया. जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे वैसे वैसे आपका डेटा एंटर होता जाएगा. ओके, इन द वे. और जो भी डिटेलिंग है, अब देखिए फी पेड में हमने यहाँ पर तो हम दे देते हैं, चलो सपोज 22. अब फील्ड पेड में देखिए येस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपको YES लिखना नहीं है. इट हैज़ क्रिएटेड अ बटन. अब इसको मैं क्लिक करती हूँ, इट मीन्स इट इज़ येस. Okay, this is a way to create a table and enter a data in a table. This is a one way to create a table in design view. Now I'm going to show you that how to create a table by using wizard. Okay, just let us start with the. See, as soon as you click here from the wizard, see wizard से करते क्या है कि wizard से जब आप चीज़ों को बनाते हैं या किसी टेबल को क्रिएट करते हैं, तो आपके पास कुछ बने बनाए पैटर्न होते हैं प्री डिसाइडेड. जैसे सपोज आपको बिजनेस के लिए चाहिए, पर्सनल चाहिए, बिजनेस में भी कौन सी कैटेगरी है, किस तरह का लेबल आप लेना चाहते हैं, वैसे कुछ सैम्पल यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए होते हैं. अब सपोज आपको बिजनेस के लिए चाहिए, तो आपकी कौन सा कैटेगरी क्या है, क्या कोई इवेंट है या कस्टमर के रिगार्डिंग बनाना चाहते हैं. सपोज हमने लिया कस्टमर.
अब कस्टमर में आप कस्टमर की क्या क्या डिटेलिंग लेना चाहते हैं, ये सारी फील्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं, हम इनको यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे और जो भी लेना है, सपोज सिटी है, एड्रेस है, नेम है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सारे लेंगे, यू चूज अकॉर्डिंगली। और सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन मोबाइल नंबर इज़ रिक्वायर्ड, हाँ भाई मोबाइल नंबर तो ज़रूरी है। तो इन द वे हम सपोज स्टेट ले लें, ठीक है, स्टेट ले लें। इन द वे थिंग्स आर हेयर। तो ये दिस इज द प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट दैट फ्रॉम द प्री डिज़ाइन विजार्ड। अब प्री डिज़ाइन विजार्ड के हेल्प से हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है उसमें से कुछ बने बनाए फील्ड्स हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपना टेबल बना सकते हैं। ओके, व्हेन यू क्लिक हेयर तो यू विल फाइंड ये हेयर, यू कैन सी यहाँ पर आपके पास फील्ड नेम है, टाइप है। अब यहाँ क्योंकि यहाँ आप विजार्ड किस तरह बना रहे हो तो हियर यू कैन सी कि फील्ड टाइप है या इंटू रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें यहाँ से, जैसे हम लोग डिज़ाइन व्यू में सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन कर रहे थे, हियर यू कैन सी यहाँ से भी आप सारे चेंजेस कर सकते हो। ओके, सपोज हमने इसको कर दिया चेंज और उसके बाद हम जाते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली क्या कोई प्राइमरी की ऐड करनी है या आपको खुद कोई चूज़ करना है। अकॉर्डिंगली यू चूज़ एवरीथिंग एंड एट द लास्ट यू कम एंड गेट द फिनिश। अब हमने यहाँ पर देखिए ये टेबल पहले हमने बनाई थी इसी तरह की टेबल, वो बनाया था फ्रॉम द डिज़ाइन व्यू, and this is the table that is coming where I can enter data for that, and that is created with the help of wizard. Okay, I hope children how to create a table from wizard and from design view, this much is clear in this topic, and rest properties, table properties या field properties that I'll explain in detail, and again you will learn that in the next video I will show you that from some SQL command how to create table. Thank you children.